show रही PPT? Yes. Yes, ma'am. Okay. So these are the contents of this first topic. That is nothing but the television. Okay. What is the gross structure, image continuity, number of scanning line, flicker, fine structure, and the tone gradation. So basics of the television is nothing but सबसे पहले जो television में we required the communication is required, in which here amplitude modulation, frequency modulation, both the things we have to study in the television. ओके मेन जो टेलीविजन का क्या बोलते हैं बेसिक्स है, दैट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द पिक्चर मॉड्यूलेशन. You can justify how the amplitude modulated transmission and the frequency modulated transmission for the television. Okay, when I am talking about the television, there is a two words, tele and the vision. Tele means distance and vision means seeing. Seeing at a distance is nothing but the television. This is the one, this is the first concept. Then second concept is that is you have to justify the choice of amplitude modulation transmission and the frequency modulation transmission. We have studied the two transmission in your communication subject, that is nothing but the AM transmission and the FM transmission. ओके सो AM ट्रांसमिशन ये हम यहाँ पे टेलीविजन में वी आर यूजिंग दिस AM ट्रांसमिशन फॉर अ picture and FM transmission is for the sound because frequency modulation है ना. So you can use the frequency modulation here for the sound. Okay, and the AM transmission it is for the picture. Then question is asking like that, justify your choice of AM transmission by picture and the FM transmission for sound in television. Why? Because AM transmission it is only for the picture transmission. ऐसा क्यों? हम पिक्चर के लिए ही क्यों AM को यूज करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पिक्चर के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं? या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भाई वी आर यूजिंग फॉर द why we are using for the sound, why not you are using for the picture? That is the most important questions that will be asked in the university examination. Anybody give you the answer of this? Why we are giving the AM transmission only for the picture and FM transmission for this television? Roughly I can ask you the question. रफली मैं पूछ रही हूँ कि कोई बता सकता है कि क्यों हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पिक्चर के लिए यूज करते हैं? Why we are not using frequency modulation? Modulation already we have studied the topic in the communication. हमने पहले ही पढ़ा है modulation. Anybody can you explain about the modulation definition? कोई बता सकता है modulation का definition क्या है? Modulation, what is modulation? Anybody? आर्यन? मैम कैरियर सिग्नल को हम वो करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. कैरियर सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, बट कैसे मैम जैसे उसमें नॉइज रहता है तो फिर वो नॉइज ऐड करके फिर उसको वो रेक्टिफाई वगैरह करते हैं. ओके नहीं रफली बता दिया आपने, सही बात है. कैरियर सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, नॉइज वगैरह अगर होगा तो उसको रिमूव करते हैं. मींस कैरियर ही तो मॉड्यूल वो जो भी आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको कैरियर ही कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाता है एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन. दैट इज नथिंग बट योर रिसीवर. ओके सो विदाउट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, विदाउट कैरियर सिग्नल आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पास नहीं होता है ना. So that is the question, why you are using the amplitude modulation for the picture and the sound for the sound frequency modulation for the sound. ये ऐसा क्यों यूज करते हैं हम इसको? The answer of these question is that for sound transmission frequency modulation it is used, and for the जो भी आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल है इट हैज अ वेरी नॉइज फ्री रिसेप्शन विच इज lesser than the as compared to the AM. Noise free reception is very less as compared to the AM modulation. That's why we are offering FM for the sound transmission in the television.
ओके, सो एक रीजन है, सबसे पहले तो हमको सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, वो आपको पता है सिग्नल किस तरीके से मॉड्यूलेट होता है, विद द हेल्प ऑफ द कैरियर सिग्नल विच इज सुपर इम्पोज्ड मिक्सिंग ऑफ द टू सिग्नल्स, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स एंड योर कैरियर सिग्नल्स। ओके, सो सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, ये तो सारी चीजें बेसिक्स ही है, उसमें वो तो आएंगी, उसके बिना तो वो सिग्नल पास ही नहीं होगा। बट आपको ट्रांसमिशन करते समय ये भी चीज को याद रखना है कि आपको कौन सा ट्रांसमिशन कौन से जगह पे यूज करना है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की साउंड ट्रांसमिशन अगर करना है तो हम वहां पे एफएम ट्रांसमिशन ही यूज करेंगे, वी कैन नॉट यूज द एएम ट्रांसमिशन। और जब हमको पिक्चर को ट्रांसमिट करना है तो हमको एएम ट्रांसमिशन ही यूज करना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि FM it has a very less noise reception. ओके, उसमें नॉइज रिसेप्शन कम होता है एज कंपेयर टू द AM, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बिकॉज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो भी हमको सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं, इट रिक्वायर्स अ लार्ज बैंडविड्थ वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर, क्योंकि हम वो पिक्चर के लिए यूज करते हैं। और हम हमेशा देखते हैं कि पिक्चर ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द नॉइज। अगर हम रेडियो या एफएम को ही सुनते हैं तो वहां पे हमको सिर्फ साउंड आता है, तो साउंड एक एक जगह पे हमको अच्छे से उसको वॉइस क्लैरिटी अच्छा मिल जाएगा, 91 पे अच्छा रहेगा, 94.3 मेगाहर्ट्ज पे अच्छा क्वालिटी रहेगा, 98.9 पे मेगाहर्ट्ज पे अच्छा क्वालिटी रहेगा। बट इन दी टेलीविजन यू कैन ट्रांसमिट बोथ द ट्रांसमिशन एट ए टाइम। ऐसा कभी भी नहीं होता है, जब कभी भी आप टेलीविजन पे कोई भी पिक्चर देखते हो तो साउंड पहले आता है या पिक्चर बाद में दिखता है, ऐसा नहीं होता है। यू कैन सी द पिक्चर एंड द साउंड एट अ टाइम, आपको एट ए टाइम वो दिखता है वहां पे, है ना। यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप अभी इतनी बार टेलीविजन देखते हो, आपने कभी सोचा है क्या कि एक कोई पिक्चर आया और उसका साउंड हमको बाद में आया? ऐसा नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ द जब आप कभी भी टेलीविजन देखते हो तो आपको साउंड और पिक्चर एट ए टाइम आता है ना। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, कैसे